फोकस यहाँ से दिख, ठीक ठीक, वहां से दिख रहे हो आप सर स्टार्ट करें। के साथ 3 लाख का दिया है और अभी चल ही रहा है ना, वो तो फाइनल नहीं हुआ। बजट कुछ शायद दिया है पैसा उसको मुझे यस यस सर, माननीय राज्यपाल जी को बुला दें। जी 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 आवाज नहीं। सभी को सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं माननीय राज्यपाल महोदया जी से अनुरोध करता हूं कि वो वेबिनार की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति प्रदान करें। ठीक है, महाराज, अनुमति प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह वेबिनार भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की योजना बनाने के हेतु किया जा रहा है। यह शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। MHRD, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा, जनवरी 2015 में एक अभूतपूर्व सहयोगी, समावेशी और अत्यधिक भागीदारी परामर्श प्रक्रिया शुरू की। मई 2016 में नई शिक्षा नीति बनाने के लिए स्वर्गीय श्री TR सुब्रमण्यम, पूर्व कैबिनेट सचिव समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके आधार पर मंत्रालय ने ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2016 के लिए इनपुट्स तैयार किए। जून 2017 में प्रख्यात वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति समिति का गठन किया गया, जिसने 31 मई 2019 को मानव संसाधन विकास मंत्री को मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तुत की। ड्राफ्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 को MHRD की वेबसाइट पर माई गवर्नमेंट
इनोवेट पोर्टल पर सार्वजनिक हितधारकों के विचारों, सुझावों, टिप्पणियों को प्राप्त करने के लिए अपलोड किया गया, जिसके बाद इस नीति को 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। इसके बाद अगस्त के महीने में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी हितधारकों से सीधा संवाद किया और फिर 7 सितंबर 2020 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी तथा यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सभी प्रदेशों के राज्यपाल महोदय से तथा कुलपतियों से संवाद किया और इस नीति के क्रियान्वयन हेतु योजना बनाने का आह्वान किया। इसी कड़ी के तहत आज हम इस वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं। अब मैं स्वागत भाषण एवं अतिथि परिचय के लिए पंजाब विश्वविद्यालय के डीन रिसर्च आचार्य VR सिन्हा जी से अनुरोध करना चाहूँगा। आचार्य सिन्हा। Respected Ansuya Uike ji, Honorable Governor of Chhattisgarh, Professor Rajkumar ji, Vice Chancellor Punjab University, invited guests, my dear colleagues and students. Good afternoon and welcome to today's webinar on New Education Policy 2020. The government New Education Policy on July 29 with the objective of bringing in wide-ranging transformation in school and higher education sectors and make India a vibrant knowledge society. The mandate of NEP 2020 is to make the current education system holistic, flexible, multidisciplinary to fulfill the promise of a new India. Speaking to the conclave on transformational reforms in higher education under National Education Policy NEP on August 7, Prime Minister Narendra Modi ji said, to implement the National Education Policy, we all have to work together with determination. A new round of dialogue and coordination with university, colleges, school education boards, different stakeholders is about to start from here. A mammoth task as big as implementing the new education policy across India can indeed be realized only through effective collaboration between the central, state level institution and the Ministry of Education. Today, on behalf of Punjab University, I extend my heartiest welcome to respected Ansuya Uike ji, Honorable Governor of Chhattisgarh. Madam hails from Chhindwara. The Lok Sabha constituency was appointed as Governor of Chhattisgarh on 16 July 2019. She is the first tribal to hold the charge of governor since the state formation in 2000. She is also the first full-time woman governor. Before she joined politics, Madam was a lecturer of economics at Government College of Chhindwara. Thus, she brings a mixed academician and administrator with her. She started her political journey in the year 1985 as she became an MLA of Madhya Pradesh Legislative Assembly. She then became a Minister of State Cabinet in 1988. Madam also became chairperson of Madhya Pradesh State Commission for Scheduled Tribes. She has also served as a member of the National Commission of Women in 2000. Madam was Rajya Sabha Member of Parliament from Madhya Pradesh between 2006 to 2012. She has served as Vice Chairperson of the National Commission for Scheduled Tribes. Today, we are also having our Vice Chancellor Rajkumar ji. He is a distinguished academician, researcher, and educational administrator. He did his PhD from Banaras Hindu University and D.Litt from Lucknow, University of Lucknow. He served as Director, Dean, and Head of Institute of Management Studies, Banaras Hindu University, Varanasi. Sir, you have mentored more than dozen PhD students, published many books and more than 100 research papers in journals of national and international repute. I also extend a very warm welcome to Professor Rajkumar ji in this webinar. On behalf of Punjab University, I also welcome all the participants in this webinar, and I sincerely hope that today's deliberation
will guide Punjab University in developing a plan for successful implementation of the new education policy. Thanks a lot and Jai Hind. धन्यवाद सर। अब मैं पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य राजकुमार जी को कुलपति उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। आचार्य राजकुमार जी। परम आदरणीय महामहिम अनुसुईया यूके, माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़, मैडम आपको सादर प्रणाम। पंजाब विश्वविद्यालय पूरे परिवार के साथ आपका स्वागत करता है। सबसे पहले मैं पूरे पंजाब विश्वविद्यालय परिवार की ओर से परम आदरणीय राज्यपाल महोदया जी का हृदय से स्वागत करता हूँ। उनके आज के कार्यक्रम में शामिल होने के कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है और हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं सबसे पहले इस अवसर का उपयोग भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई और धन्यवाद देने के लिए करना चाहता हूं, जिनके मार्गदर्शन में देश को एक क्रांतिकारी और भारतीय मूल्यों पर केंद्रित शिक्षा नीति मिली है। हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और सशक्त भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में यह नीति मील का पत्थर बनेगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। मैडम, साथ ही साथ मैं माननीय शिक्षा मंत्री का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने समय के अंतराल के बाद इस तरह की शिक्षा नीति का तोहफा भारतवर्ष को दिया है, विशेष रूप से भारतवर्ष के शिक्षण वर्ग को दिया है। मैंने स्वयं अपने शैक्षणिक जीवन में 2 शिक्षा नीतियों को आते हुए देखा है, एनईपी 1986 और अब एनईपी 2020। मैं बड़े आसानी से इसकी तुलना कर सकता हूँ कि इस नीति को बनाने में कितनी मेहनत लगाई गई है। सही अर्थों में मैं कह सकता हूँ यह आम जन की नीति है। एनईपी 2020 पिछली शिक्षा नीतियों से काफ़ी भिन्न है और यह नीति आज के दौर की सभी ज़रूरतों को पूरा करने और पुरानी कमियों को दूर करने वाली है। मान्या जी, एनईपी 2020 को 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉक, 6,000 यूएलबी, 776 जिलों से लगभग 2 लाख सुझावों को शामिल करने के बाद इस प्रक्रिया को पूरा किया गया है। इसी के आधार पर यह समझा जा सकता है कि इस नीति को कितनी गहराई और कितनी गंभीरता से बनाया गया है। आदरणीय राज्यपाल महोदया, भारत में सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक पंजाब विश्वविद्यालय अकादमिक कार्यक्रमों में नवाचार, अनुसंधान और शिक्षण में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सतत
आदरणीय राज्यपाल महोदय, आज कुछ तकनीकी कारणों की वजह से हमारा नेटवर्क बंद, अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपना प्रदर्शन करें। माननीय राज्यपाल महोदय जी। बीसी साहब का पूरा करा दीजिए ना, अब मुझे भी सुनना है। जी मैम, मैं अभी अनुरोध करता हूँ माननीय कुलपति महोदय जी से। लास्ट में थोड़ा सा नहीं, मैं समझ रही, तकनीकी के उसमें आप क्या कर सकते हैं। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद मैडम, आपने हमारी जो भावना और हमारी कठिनाई को समझा है, इसके लिए मैं पुनः साधुवाद देना चाहूंगा। आदरणीय महोदया, पंजाब विश्वविद्यालय में काफी सारे जनजातीय क्षेत्रों के बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वह लद्दाख का क्षेत्र हो, हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र हो, उत्तराखंड के हों या सुदूर उत्तर पूर्व के सभी क्षेत्रों से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं। मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि आप हमारा इस विषय में भी मार्गदर्शन करें कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जनजातीय छात्रों के संदर्भ में किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, किस तरह से हमारा विश्वविद्यालय कल्याण के लिए कुछ योजनाएं तैयार कर सकता है। मैं आपको ये भी सूचित करना चाहूंगा माननीय राज्यपाल महोदया कि हमारा विश्वविद्यालय में स्थित एक स्टेशन लैब है जो कि आसपास के विश्वविद्यालयों में शायद नहीं है, और वहां पर हम अपने स्टूडेंट को साथ ही साथ वैज्ञानिक जो हमारे अध्यापक होते हैं उनके लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करते रहा का प्रोग्राम मैं लेह लद्दाख, JNK और सुदूर उत्तर पूर्व के विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए कर चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर आप हमें अनुमति दें तो इस तरह का उनके लिए विद्यार्थियों के लिए और अध्यापकों के लिए आपके स्टेट के लिए हम अलग से इस तरह का प्रोग्राम हम कर सकते हैं, और ये कार्यक्रम उन बच्चों के लिए हम जो है मुफ्त में देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये सुविधाएं हमें पूरा हम जानते हैं कि शायद उस स्टेट में बच्चों को उपलब्ध नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः आपका पंजाब विश्वविद्यालय में स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथ ही साथ आपके प्रति बड़ी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने हमारे पंजाब विश्वविद्यालय के लिए, परिवार के लिए अपना अमूल्य समय दिया। धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदया, अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें और अपना आशीर्वाद वचन दें। माननीय राज्यपाल महोदय। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ द्वारा नवीन शिक्षा नीति 2020 विषय पर जो आज आयोजित वेबिनार किया जा रहा है, इसके लिए सर्वप्रथम मैं कुलपति माननीय राजकुमार जी एवं उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ कि आपने एक ऐसे विषय पर नवीन शिक्षा नीति 2020 विषय पर वेबिनार किया है, और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ये इस वेबिनार के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां भी जो है लोगों तक भी पहुंचेगी कि नवीन शिक्षा नीति क्या है, उसमें किस तरह का सुझाव और नीतियां लाई गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा और सुझाव भी, और मैंने सुना है कि आपने इस पर काफी करीब 300 से ऊपर भी कुछ वेबिनार भी किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है।
और मुझे ये सौभाग्य मिला है कि एक ऐसी पुरानी यूनिवर्सिटी जो 1882 में 1882 में ये चंडीगढ़ में इसका लाहौर बंटवारे के उपरांत से चंडीगढ़ में ये कार्यरत है। और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मुझे खुशी भी हो रही है आपके इस विश्वविद्यालय में वेबिनार में शामिल होते हुए। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। आज इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर उपस्थित हैं, ये जो कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं माननीय प्रोफेसर प्रशांत गौतम जी, आपके ये जो प्रोफेसर माननीय हरीश कुमार जी, एसके तोमर जी, सुखविंदर सिंह जी, प्रोफेसर संजय कौशिक जी, सिन्हा जी, ये तमाम सारे हमारे सम्मानीय प्रोफेसर गणों का मैं अभिनंदन करती हूँ और उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि आप सब लोगों ने मिलकर माननीय कुलपति राजकुमार जी के नेतृत्व में ये वेबिनार का कार्यक्रम आयोजित किया है। और हालांकि चूंकि आप लोग तो इतने विद्वान व्यक्ति हैं, मैं इस मौके पर क्या कहूं, शिक्षा नीति के संबंध में जो कुछ भी पिछले 7 सितंबर को जब राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, तो उसमें भी मैंने कुछ अपने सुझाव भी दिए थे और कुछ बातें आपने कहा कुलपति जी कुछ ट्राइबल क्षेत्रों के बारे में, तो मैं कुछ उसके बारे में भी अपने विचारों को आपके इस वेबिनार के माध्यम से मैं रखना चाहूंगी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था कि शिक्षा से मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। संपूर्ण विश्व को एक इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। यही हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार भी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम की 18 परियोजनाओं में से नई शिक्षा की संकल्पना भी एक थी। मूलभूत शिक्षा के प्रति गांधीवादी दृष्टिकोण सर्वांगीण था, जिसमें व्यक्ति के बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जैसे सभी पहलू समाहित है। नई शिक्षा नीति में इसे शामिल किया गया है। वास्तव में जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो शिक्षा नीति बनाई गई है, उसकी जो संकल्पना थी जो पहले हमारे महात्मा गांधी जी की, और वो धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन होते गया और एक नई जो शिक्षा के रूप में बहुत सारा परिवर्तन भी आया। लेकिन पुनः इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहती हूँ, उन्हें और शिक्षा मंत्री जी को भी, कि उन्होंने एक नई शिक्षा नीति में तमाम सारे विषयों को शामिल किया है। भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह सोच है, यह शिक्षा नीति 21वीं सदी के लिए भारत की नींव तैयार करने वाली है। हर देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपने राष्ट्रीय मूल्यों के साथ जोड़ते हुए अपने राष्ट्रीय लक्ष्य के आधार अनुसार सुधार करते हुए चलता है। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 संपूर्ण रूप से स्कूल एवं उच्च शिक्षा के मानकों को स्थापित करने वाली है। इसके समस्त प्रावधान उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, स्वायत्ता एवं छात्रों को बेहतर विकल्प प्रदान करते हुए शोध में नवाचार लाने में सहायक होगी। 21वीं सदी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश की प्रथम शिक्षा नीति है, जो विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रदान करने और भारत को वैश्विक महाशक्ति तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने में सहायक होगी।
वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो संकल्पना की गई है और आज के जो कोविड-19 के जो संक्रमण का जो महामारी पूरे देश और दुनिया में जो फैला हुआ है, और उस स्थिति में आज के जो नौजवान हैं, नवयुवक हैं, जो बेरोजगार हैं, इतनी परेशानियां हमारी अर्थव्यवस्था इन चीजों से मतलब अस्थिर सी हो गई है। और ऐसे समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये आह्वान किया गया कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की, ये वास्तव में हम सब के लिए और इस देशवासियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उस शिक्षा को पूरी तरह बदलने वाली है। इसमें विद्यार्थी को समग्र शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है। विद्यार्थी अपनी पसंद के विषय का अध्ययन कर पाएंगे। उस शिक्षा में ही रहे विषयों के विघटन को समाप्त करते हुए समस्त विश्वविद्यालय को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने की योजना इस नवीन शिक्षा नीति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है। इससे हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों को विश्व के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के समकक्ष खड़ा किया जा सकेगा। नवीन शिक्षा नीति में शिक्षकों को केंद्र बिंदु मानते हुए शिक्षकों की भर्ती एवं उनके विकास पर विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए हैं, जिससे शिक्षकों को समाज के सबसे सम्मानित सदस्य के रूप में पुनः स्थापित किया जाएगा। परीक्षा में समाज विश्लेषण एवं उपयोगिता से संबंधित प्रश्न पूछे जाने से स्टूडेंट की विद्या से मुक्ति मिलेगी तथा कोचिंग पर निर्भरता समाप्त होगी। कानून एवं चिकित्सा महाविद्यालय को छोड़कर से सभी उच्च शिक्षा संस्थानों का संचालन एक ही नियामक संस्था द्वारा किए जाने से समस्त उच्च शिक्षा संस्थानों की गतिविधियों में एक रूपता आएगी। नई शिक्षा नीति का सबसे उल्लेखनीय पक्ष यह है कि जीडीपी का यह 6% शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया। इस लक्ष्य को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी बुनियादी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक का ढांचा संसाधनों के अभाव का सामना कर रहा है। शिक्षा, ये वास्तव में बात सही है कि आज वर्तमान में मैं जब देख रही हूँ हमारे प्रदेश में भी यूनिवर्सिटी की जो स्थितियां हैं, आज भी हमारे बहुत सारे यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसरों की कमी है। नेक का जो है उसका सही रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, गुणवत्ता भी। तो मैं ये इस पे सुधार काफी ला रही हूँ। यहाँ मैंने जोर दिया है अपने छत्तीसगढ़ में कि यूनिवर्सिटी में आज जो वर्तमान में जो हालात है, हमारे यहाँ पर करीब 8 ऐसे विश्वविद्यालय, 8, 9 और 18 करीब प्राइवेट विश्वविद्यालय है। तो ऐसी स्थिति में ये तो सामने उसको रखना चाहिए था, मुझे ध्यान उसी में। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीजों का सामना तो कर रहे हैं। शिक्षा ही देश के भविष्य का निर्धारण करती है। नई शिक्षा नीति में व्यापक बदलाव समय की मांग थी। यह अच्छा है कि यह मांग पूरी होती दिख रही है, क्योंकि एक और जहां 5वीं कक्षा तक के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने का व्यवस्था के साथ स्कूली शिक्षा के ढांचे में व्यापक परिवर्तन किया गया। वास्तव में जब ये जो मातृभाषा, हर देश की अलग अलग भौगोलिक दृष्टि से वहां की अपनी अपनी एक भाषा है। जैसे आपका ये पंजाब, हरियाणा और ये क्षेत्र है, वहाँ पंजाबी। ऐसी तरह से हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ी, उड़ीसा। तो ये जब बच्चे जो इस शिक्षा
जब आते हैं तो क्या होता है कि ये लोग अपना जो मूलभूत जो अपनी भाषा है उसकी शिक्षा ना होने के कारण बहुत सारे बच्चों को समझ भी नहीं होती है। कम से कम इस शिक्षा नीति में ये तो हुआ है कि प्रारंभिक शिक्षा जो है 1 से 5 तक कम से कम अपनी मातृभाषा में। तो ये जो ढांचे का इस तरह की शिक्षा से मतलब एक ढांचे में व्यापक परिवर्तन किया गया, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम है। शैक्षणिक स्तर पर किए गए प्रयोगों के आधार पर यह बात सिद्ध हो चुकी है कि बच्चों के घर की बोली और स्कूल में पढ़ाई की भाषा एक ही होने से बच्चों के सीखने की गति बेहतर होती है। और यही वजह है कि नई शिक्षा नीति में 5वीं कक्षा तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ने पर सहमति दी गई है। हमें यह भी प्रयास किया जाना चाहिए कि जनजाति क्षेत्रों में गोंडी, हल्बी, छत्तीसगढ़ी, सरगुजाही तथा अन्य प्रदेशों की जो स्थानीय बोली भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में एक अपनी अपनी भाषा है, स्थानीय भाषा, तो इसमें भी ये इसको प्राथमिकता मतलब बोली में मिलना चाहिए। साथ ही स्थानीय महापुरुषों और लोक कथाओं का भी उनके पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। अब शिक्षा में एक नया वैश्विक मानक भी तय हो रहे हैं। इसके हिसाब से भारत के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव हो, यह भी तय किया जाना बहुत जरूरी है। नई शिक्षा नीति में स्कूली पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे से आगे बढ़कर अब 5+3+3+4 पाठ्यक्रम का ढांचा देना इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। नई शिक्षा नीति 2020 का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होना। अभी यह कोई छात्र 3 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारण से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता तो उसको ये जो एक व्यवस्था दी गई है उसको कुछ भी हासिल नहीं होता था। लेकिन अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट 2 साल के लिए डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने के बाद डिग्री मिल जाएगी। ये कितना बड़ा शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ है। आप सोचिए कि जो व्यक्ति अगर 2 साल तक ही उसने सेमेस्टर किया और नहीं किया तो उसका पूरा समय उसकी डिग्री का खत्म हो जाता था, लेकिन इसमें मौका दिया गया। शिक्षण देश की प्रगति का आधार है। सभी को शिक्षा का अधिकार एवं शिक्षित समाज का निर्माण हमारी संवैधानिक ही नहीं नैतिक जिम्मेदारी भी है। आजादी के वर्ष बाद 1968 में पहली शिक्षा नीति लागू की गई थी, जिसका दूसरा पड़ाव वर्ष 1986 में आया। लेकिन विगत 34 वर्षों में राष्ट्रीय एवं वैश्विक परिस्थितियों में व्यापक परिवर्तन के बावजूद भी नई शिक्षा का आगाज नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में नई शिक्षा नीति 2020 के रूप में हम एक ऐसा विजन देश को सक्षम लेकर आए हैं जो एक नए भारत, शिक्षित एवं आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेगा। मैं कुछ रूप में भी हमारे माननीय कुलपति जी ने कुछ कहा है कि जनजातियों के संबंध में भी आपके यहाँ पर यूनिवर्सिटी में विभिन्न प्रदेशों के बच्चे, नॉर्थ ईस्ट के भी और भी अन्य क्षेत्रों के ट्राइबल बच्चे आते पढ़ने के लिए। तो उस संबंध में भी मेरे कुछ सुझाव थे जो मैं आपके उसमें देना चाहती हूँ। और दूसरी बात, आपने ये भी कहा था कि आप ऐसे क्षेत्रों में इन बच्चों को और प्रोफेसरों को भी ट्रेनिंग देते हैं जहां उसके लिए उसकी नई नई चीजों शिक्षा के क्षेत्र में और उसको क्या और मतलब बेनिफिट्स उसके रूप में एक अच्छा उसको डेवलपमेंट हो उसका, उस दृष्टि से भी आपने कहा कि हम ऐसे बहुत जगह ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं।
तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपका छत्तीसगढ़ में मैं स्वागत करती हूँ, कि मुझे खुशी होगी कि आप हमारे छत्तीसगढ़ के जो हमारा पूरा ट्राइबल प्रदेश है, 32% यहाँ का ट्राइबल एरियाज है, और काफी कुछ जो हमारा एरिया है बहुत सारी समस्याओं से जूझ भी रहा है। यहाँ नक्सलवाद की भी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमारे यहाँ के उस ट्राइबल एरिया के जो बच्चे हैं आज वो धीरे धीरे करके कॉलेज में और यूनिवर्सिटी की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और आपके माध्यम से अगर उनको इस तरह की ट्रेनिंग और प्रशिक्षण अगर मिलेगा तो उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये मेरा आपसे अनुरोध है। जनजाति के संबंध में मैं कहना चाहती हूँ, जो जनजातियों की भाषा जैसे गोंडी का एक पूरे देश में एक भाषा है ट्राइबल की, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और भी, तो इनकी अपनी अलग अलग भाषा भी होती है। तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा में इसको शामिल किया जाना चाहिए। ये मेरा पहले भी मैंने एक सुझाव के तौर पे कहा। जनजातियों की भाषा जिसमें गोंडी भी शामिल है, इसको प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे जनजाति समाज और उनकी नई पीढ़ी अपनी भाषा संस्कृति को समझ सके और उससे उपलब्ध ज्ञान को संरक्षित रखे जाए। कुल राज्यों में जहां पर जनजाति की संख्या अधिक है, वहां पर संबंधित क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर जनजाति भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति करने और नियुक्ति में क्षेत्रीय जनजाति भाषा के शिक्षकों के लिए पद आरक्षित करने की भी आवश्यकता है। आदिवासी अंचलों में मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ किए जाए, जिससे इन क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सकेगा और आदिवासी युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने का एक मौका मिलेगा। कृषि के क्षेत्र में आपका ये हरियाणा, पंजाब क्षेत्र तो हमेशा कृषि प्रधान प्रदेश माना जाता है, यहाँ बड़ी बहुलता है कृषि के क्षेत्र में भी। इसमें भी मेरा एक कुछ सुझाव है कि कृषि की उच्च शिक्षा देने के लिए ऐसे अध्ययन एवं अनुसंधान की आवश्यकता है जिनके द्वारा कृषि की शिक्षा में गुणवत्ता पूर्वक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्य हो सके, ताकि युवा वर्ग कृषि शिक्षा को एक कैरियर के रूप में चुन सके और युवा रोजगार में व्यवसाय की ओर अग्रसर हो सके। कभी कभी मैं ये महसूस करती हूँ कि जो एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में जो हमारे युवक पढ़ते तो हैं, शिक्षा लेते हैं, लेकिन उसके बाद डिग्री लेने के बाद उनका ध्यान कृषि क्षेत्र में ना होकर वो कुछ ना कुछ दूसरे जॉब की ओर ज्यादा वो लोग जाते हैं। और इसके लिए भी हमारे कृषि विश्वविद्यालय ने भी काफी कुछ कृषि को लाभ का धंधा कैसे बनाए, और नए जो युवक हैं एक कृषि के क्षेत्र में यहाँ से डिग्री प्राप्त करके और उसी में ही वो अपना रोजगार चुन सके और बहुत अच्छे तरीके से। आज भी कृषि के क्षेत्र में नई नई तकनीकी के कारण उत्पादन और गुणवत्ता में काफी परिवर्तन आ रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आज का बेरोजगार नौकरी की ही उसके लिए सब कुछ है। अगर वो अपना कृषि को भी अगर वो रोजगार का अगर वो मान लेगा तो निश्चित रूप से उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। इसी तरह से मेरा एक इसमें सुझाव, शिक्षकों को तकनीक आधारित शिक्षण पद्धति से परिचित कराने के लिए विश्वविद्यालय को नोडल सेंटर बनाकर क्रमबद्ध शिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाना चाहिए। इसी तरह से शासकीय महाविद्यालय में छात्रों के शुल्क एवं प्रशासन नियामक आयोग का गठन किया जाए, जिससे छात्र, शिक्षक एवं अभिभावक सहित अन्य संबंधितों के हितों की सुरक्षा का निर्धारण हो सके। हालांकि मेरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में तो ये इस तरह का नियामक आयोग है, और प्रदेशों में पता नहीं है या नहीं है, तो अगर हो नहीं है तो वहां पर भी इस तरह का गठन होना चाहिए। इसी तरह से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अनधिकृत पाठ्य सामग्री के प्रकाशन को प्रतिबंधित किया जाए,
जिससे विद्यार्थी अच्छी पाठ्य सामग्री को पढ़ने के लिए बाध्य हो। वास्तव में आजकल के आप भी महसूस कर रहे होंगे कि जो बच्चा है, एक 5 साल का 2 साल का इतना बोझ उसके ऊपर डाल दिया जाता है कि उसका बचपना खत्म हो जाता है, और माँ बाप भी उसको इतना ज्यादा प्रेशर बना के रखते हैं कि जो मूलभूत और उस शिक्षा में भी वो हमारे जो परिवार के और माता पिता के जो पुरानी शिक्षा में रहा करती थी कि उसको आचार विचार संस्कार और एक सम्मान कैसे हमारे गुरुजनों के प्रति माता पिता का, तो ये तमाम सारी चीजें वो चीजों को देखने को नहीं मिलती है। आप भी महसूस करते हैं, लेकिन इस शिक्षा नीति में सारी चीजों को सामाहिक किया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। सभी स्थानों पर स्थानीय साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, अतः महाविद्यालय स्तर पर भाषा को अध्ययन के लिए लेखकों साहित्यकारों को साहित्य उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ई पाठ्यक्रम का लाभ दूरदर्श ग्रामीण अंचल तक तथा आदिवासी बहुल क्षेत्र में निवासरत विद्यार्थी को मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दूर आज भी जब हम देख रहे हैं, मैंने कई बार समय समय पर ये कहा है कि ऑनलाइन के जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, ऑनलाइन से सारी चीजें उनकी इस स्कूलों में कॉलेजों में जो पढ़ाई, तो ये बहुत दिक्कत हो रही है। आज नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जब आज अभी का वेबिनार में नेटवर्क के कारण कितनी सारी समस्या उत्पन्न होती, तो ग्रामीण अंचल में तो ये सारी चीजें मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में भी बहुत जरूरी है कि ई पाठ्यक्रम का लाभ दूरस्थ ग्रामीण अंचल तक आदिवासी क्षेत्रों में निवास विद्यार्थी को मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। स्थानीय विद्यार्थी को प्रारंभिक शिक्षा का अध्ययन स्थानीय भाषा में, जो पहले भी बोल चुकी हूं मैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संपूर्ण रूप से शिक्षा के मानकों को स्थापित करने वाली, इसके सभी प्रावधान शिक्षा की गुणवत्ता स्वायत्ता एवं सभी छात्रों को बेहतर विकल्प प्रदान करेंगे। अब ये सारी बातें जो है मैंने कुछ सुझाव के तौर पर आपके सामने रखी हूं, और भी जो मेरे अपने विचार, मुझे ऐसा लगा कि ये भी इसमें शामिल होना चाहिए। और बाकी का तो सब कुछ आपने भी बता चुके हैं, और जो मेरे अपने कुल ऐसा महसूस हुआ तो वो सारी बातें मैंने आपके सामने रखी हूँ। और आपने जो मेरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के वासियों के लिए और जो आप ट्राइबलों के लिए वहां पर जो आपने बताया, मैं आपको बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ कि कम से कम आपका यूनिवर्सिटी में ट्राइबलों के लिए और वहां एडमिशन लेकर और उनको जो आप शिक्षा और उनके मतलब आगे बढ़ाने का उनका जो फ्यूचर को वो आप कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही मुझे खुशी हुई है। और आप निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में ये कार्यक्रम प्रारंभ करिएगा, और जो भी मुझसे आप चाहेंगे, जैसा भी सहयोग, निश्चित रूप से मैं आपकी यूनिवर्सिटी के लिए पूरा सहयोग करूंगी। अंत में आपकी सारी पूरी टीम को, आपको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनाई नहीं दे रहा। महामहिम राज्यपाल महोदय जी का। अच्छा ये बताइए एक मिनट, मेरी आवाज सुनाई दे रही थी पूरी साफ साफ की नहीं? जी आपका बिल्कुल ठीक सुनाई दिया था। और अब मैं अपने आचार्य हरीश कुमार जी को धन्यवाद प्रस्ताव देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू प्रशांत जी। एक और कुलपति जी, जी मैं ये बड़ा मुझे भी मतलब आप भी समझ रहे हैं, ये कोविड-19 के इस संक्रमण के कार्यकाल के दौरान हमें वेबिनार के द्वारा एक दूसरे से ही मिलने का अवसर मिल रहा है, लेकिन ये जल्दी ही हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे
और जैसे ही ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं जरूर आपकी यूनिवर्सिटी जरूर आऊंगी देखने की। अरे बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सबसे पहले मैं पंजाब विश्वविद्यालय की ओर से माननीय महामहिम सुश्री अनुसुईया उके जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय परिवार का नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए मार्गदर्शन किया। मैं धन्यवाद करता हूं आचार्य श्री राजकुमार जी, कुलपति पंजाब विश्वविद्यालय, जो पंजाब विश्वविद्यालय परिवार को संगठित रूप से आगे लेके चल रहे हैं। कि जो इस तरह का मैं धन्यवाद करता हूं पंजाब विश्वविद्यालय परिवार के अधिकारीगण, प्रोफेसर BR सिन्हा, डीन अनुसंधान, प्रोफेसर सुखवीर कौर, डीन स्टूडेंट वेलफेयर वीमेन, प्रोफेसर सुशील कुमार तोमर, डीन स्टूडेंट वेलफेयर, प्रोफेसर संजय कौशिक, डीन कॉलेज विकास परिषद, प्रोफेसर सुखविंदर सिंह, निदेशक कंप्यूटर सेंटर, प्रोफेसर प्रशांत गौतम, इंचार्ज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वेबिनार्स, जो हर समय पंजाब विश्वविद्यालय की सेवा में लगे रहते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे टेक्निकल स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ जो बैकडोर में इस प्रोग्राम में लगे हुए हैं। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे स्टूडेंट्स, हमारे फैकल्टी मेंबर्स, साइंटिस्ट, जिन्होंने पूरी निष्ठा से इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। मैं प्रणाम करता हूं माँ सरस्वती को, जो हमेशा पंजाब विश्वविद्यालय में विराजमान रहती है। पंजाब विश्वविद्यालय हमेशा आपका आभारी रहेगा। थैंक यू। धन्यवाद आचार्य हरीश जी। अब मैं महामहिम राज्यपाल महोदया जी से अनुरोध करता हूं कि वो आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति प्रदान करें। समाप्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।